Hello everyone, welcome to channel. Let's start our new topic, digestion and absorption. Food is one of the basic requirements of all the living organisms. The major component of our food are carbohydrates, proteins and fats. Vitamins and minerals are also required in small quantities. Food provides energy and organic material for growth and repair of tissues. Water we take in plays an important role in metabolic processes and also prevents dehydration of the body. Biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. This process of conversion of complex food substances to simple absorbable form is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. Let's make notes. Carbohydrate, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are also required in small quantities. ठीक है, फिर कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। जिस प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में चेंज होता है उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। Human digestive system consists of alimentary canal and the associated glands. Human digestive system consists of alimentary canal and associated glands. Alimentary canal begins with an anterior opening the mouth and it opens posteriorly through anus. Mouth leads to the buccal cavity or oral cavity. Oral cavity has a number of teeth and a muscular tongue. Each tooth is embedded in a socket of jawbone. This type of attachment is called thecodont. Majority of mammals, including human beings, have two sets of teeth during their life. A set of temporary milk and dioecious teeth, deciduous teeth, replaced by a set of permanent or adult teeth. This type of dentation is diphodont. An adult human has 32 permanent teeth which are of different types. Heterodonts, dentition, incisor, canine, premolar and molar. Arrangement 2123 2123. Hard chewing surface of teeth made of enamel helps in mastification of food. Tongue is freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. Upper surface of the tongue
has a small projection papilla, some of which bear taste buds. Let's see diagram quickly. Mouth, mouth. This is mouth, and this is oral cavity, parotid gland, pharynx, submaxillary and sublingual gland, esophagus, liver, gallbladder, stomach, pancreas, duodenum, transverse colon, ascending colon, highly coiled ileum. This is cecum, and this is vermiform appendix. Anus, rectum, descending colon, and this is jejunum. बात एलिमेंट्री कैनाल पे एलिमेंट्री कैनाल बिगिन होता है, begins with an anterior opening माउथ और एंड होता है एट एनस। तो जो माउथ होता है ये लीड करता है बकल कैविटी तक, लीड्स टू बकल कैविटी, या फिर कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी होती है, इनके पास नंबर ऑफ टीथ और टंग होता है। टीथ के बारे में पढ़ते हैं। टूथ, each tooth is embedded in a socket of jaw bone। इसको हम लोग कहते हैं थीकोडोंट। और ये तो दो टाइप की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। और इस टाइप के डेंटिशन को हम लोग कहते हैं डाइफोडोंट। जो एडल्ट टीथ होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसका रिप्रेजेंटेशन या अरेंजमेंट होता है 2123 बाय 2123। किड्स के लिए, चिल्ड्रन टीथ के लिए जो टेम्परेरी, ये परमानेंट टीथ होता है एडल्ट का,
और किड्स का चिल्ड्रन का टेम्परेरी होता है। तो चिल्ड्रन के लिए जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2102 ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इनमें प्री मोलर्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं टंग पे। जो टंग होता है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है। वो अटैच्ड होता है टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनेलम। जो अपर सरफेस होती है टंग की उसके पास स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग पैपिला कहते हैं। ठीक है, और अब आते हैं आगे। जो ओरल कैविटी होती है वो लीड करती है शॉर्ट फेरिंग्स में, जो कि कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। ईसोफेगस एंड ट्रैकियर, उसको ट्रैकियर को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। ओपन होता है फेरिंग्स में, एक कार्टिलिजिनस फ्लैप होता है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री ग्लॉटिस में। ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग। ईसोफेगस एक थिन लंबा ट्यूब होता है जो कि एक्सटेंड करता है पोस्टेरली पासिंग थ्रू द नेक, thorax एंड डायफ्राम, और ये जाता है टू जे शेप्ड बैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं स्टमक। मस्कुलर स्फिंक्टर जिसका नाम है गैस्ट्रो ईसोफेगल, ये रेगुलेट करता है ईसोफेगल की ओपनिंग स्टमक में। जो स्टमक है वो अपर लेफ्ट पोर्शन में लोकेटेड है। इसके तीन पार्ट हैं, कार्डिएक जो कि पोर्शन होता है, जो कि पोर्शन इनटू विच जिसमें ओसोफेगस खुलता है। फंडिक और पायलोरिक, पायलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो डिस्टिंग्विश होता है थ्री रीजन में, सी शेप डिओडेनम, लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। Opening of stomach into duodenum is guarded by pyloric sphincter. इलम खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आता है सीकम, पोलन, रेक्टम। रेक्टम लीड करता है एनस को, एनस तक। फिर जो सीकम होता है वो एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जो कि होस्ट होता है कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। फिर नैरो फिंगर ट्यूबुलर प्रोजेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि अराइव करता है सीकम से। जो सीकम है वो खुलता है कोलन में। कोलन डिवाइडेड होता है तीन पार्ट में, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग। जो डिसेंडिंग पार्ट है वो ओपन होता है रेक्टम में, जो कि बाद में खुलता है एनस तक, एनस का। ठीक है,
वॉल होता है जो एलिमेंट्री कैनाल का, फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम। उसके 4 लेयर होते हैं, सरोसा, मस्कुलेरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। जो सरोसा होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये बनता है थिन मीजोथीलियम, जिसको हम लोग कहते हैं एपिथेलियम विसरल ऑर्गन से। इनके पास कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। जो मस्कुलेरिस है वो फॉर्म्ड होता है स्मूथ मसल से, जो कि यूजुअली अरेंज होती है इनटू इनर सर्किल एंड एन आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। एक ऑब्लिक मस्कुलर लेयर होता है जो कि प्रेजेंट होता है कुछ रीजन में। सब म्यूकोसल लेयर वो फॉर्म होता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज से। इनके पास नर्व होते हैं, ब्लड होते हैं, लिम्फ होते हैं, वेसल होते हैं। जो डिओडेनम है, डिओडेनम में ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है इन सब म्यूकोसा। Innermost layer lining the lumen and alimentary canal is the mucosa. This layer forms irregular fold, जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूग इन द स्टमक। स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में। The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli, giving brush border appearance. These modifications increase surface area enormously. Villi are supplied with network of capillaries and a large lymph vessel. इनको कहते हैं lacteal. Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus that help in lubrication. Mucosa also form gland in stomach, gastric gland, and crypts in between the base of villi and in intestine, जिसको हम लोग कहते हैं crypts of Leeuwenhoek. All the four uh, all the 4 layers show modification in different parts of alimentary canal. This is very important page. पूरा पेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आते हैं ओरल कैविटी पे। ये लीड करता है एक शॉर्ट फिरिंग्स में। ये शॉर्ट फिरिंग्स फिरिंग्स होता है वो सर्व होता है, मतलब ये एक होता है कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है। फिर ईसोफेगस और ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग कहते हैं विंड पाइप। ये खुलता है इनटू फेरिंग्स, मतलब ये दोनों खुलते हैं इनटू फेरिंग्स। एक कार्टिलिजिनस फ्लैप होता है। जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है? दैट्स द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप
ड्यूरिंग swallowing swallowing। जो ईसोफेगस होता है ये थिन लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड पोस्टीरियरली extends posteriorly passing through the neck। और ये लीड करता है जे शेप्ड बैग में जिसको हम लोग कहते हैं स्टमक। फिर अब आते स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। एक मस्कुलर अब आगे इसके अब आते हैं स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोगों ने कहा है गैस्ट्रो ईसोफेगल। ये रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। जो स्टमक होता है ये लोकेटेड होता है इनटू अपर लेफ्ट पोर्शन में। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो कार्डियक होता है ये पोर्शन होता है जिसमें ईसोफेगस खुलता है। फिर आता है पाइलोरिक। जो पाइलोरिक होता है इट इज अ पोर्शन
which opens into the first part of स्मॉल इंटेस्टाइन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि स्टमक के बिहाइंड हमारा मिलता है क्लीन। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो डिस्टिंग्विश होता है 3 रीजन्स में। पहला सी शेप्ड डुओडेनम, लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन, जिसे कहते हैं जेजनम, और हाईली कॉइल्ड इलियम। ओपनिंग ऑफ स्टमक into duodenum, guarded by pyloric sphincter। ठीक है, जो इलियम है ये खुलता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। जो सीकम है ये स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जिनके पास कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और नैरो finger like tubular projections, finger like tubular projections, जिसको हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और ये अराइज करता है
फ्रॉम सीकम। ये सब डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। Walls of alimentary canal from esophagus to rectum। इनके 4 लेयर्स होते हैं इस वॉल के, सेरोसा, मस्कुलेरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर होता है, और ये बनता है थिन मेसोथीलियम, epithelium of visceral organs, with some connective tissues। जो मस्कुलेरिस है, ये फॉर्म्ड होता है बाय स्मूथ मसल और यूजुअली अरेंज्ड होता है इनटू इनर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर। जो सबम्यूकोसा होता है, ये फॉर्म होता है लूज टिश्यू का, फॉर्म्ड ऑफ लूज टिश्यू से मिलके बनता है। लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ये आउटर लेयर जो है ये सेरोसा है, ये लाइंड वाला सरफेस, ये है इनर सर्कुलर, और ये गोला वाला सरफेस ये है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, और ये दोनों मिला के हमारा बनता है मस्कुलेरिस। लाइट पिंक वाला है सब म्यूकोसा, ये म्यूकोसा, और ये है ल्यूमेन। इनके पास नर्व्स होते हैं,
ब्लड होता है, लिम्फ वेसल होते हैं, इंडियोडेनम, डियोडेनम में जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा में। फिर आता है म्यूकोसा, जो इनर मोस्ट लेयर होता है म्यूकोसा का, ये लाइन करता है ल्यूमेन। और जो लेयर होती है ये फॉर्म करते हैं इरेगुलर फोल्ड्स, जिसको हम लोग कहते हैं रूग। स्टमक में और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, जिनको हम लोग कहते हैं विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्स जो लाइन करते हैं विलाई को, ये प्रोड्यूस करते हैं न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस, जिनको हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई। और ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया। जो विलाई है ये सप्लाई करता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और लार्ज लिम्फ वेसल, जिनको हम लोग कहते हैं लेक्टियल। जो म्यूकोसल एपिथेलियम होता है इनके पास गॉबलेट सेल्स होते हैं जो सेक्रीट करते हैं म्यूकस, और ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। जो म्यूकोसा होता है ये फॉर्म करता है ग्लैंड्स स्टमक में, जिनको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और क्रिप्ट्स बिटवीन बेस ऑफ विलाई, जिनको हम लोग कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीबरन लीबरकेन हून। ठीक है, अब आगे आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे।
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आएंगे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास। Saliva is mainly produced by three pair of salivary gland. Parotids चीज में प्रेजेंट होता है, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडुलर ये जॉ के नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, और सब लिंगल्स ये टंग के नीचे वाले में प्रेजेंट होता है। These glands situated just outside the buccal cavity secrete saliva juice into the buccal cavity. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं सलाइवा, लीवर और पैंक्रियास। अब सलाइवा के बारे में पहले बात करते हैं। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड by three pairs of salivary glands, parotids, submaxillary या सब मैंडिबुलर या सब लिंगुअल्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पैरोटिड प्रेजेंट होता है चीक्स में, चीक्स में, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर प्रेजेंट होता है जॉ के नीचे वाले हिस्से में, इसको हम लोग लोअर जॉ भी कहते हैं, और ये सब लिंगुअल होता है टंग के नीचे। तो ये तीनों प्रेजेंट होते हैं बगल कैविटी के आउटसाइड, बगल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, और ये सेक्रीट करते हैं सलाइवरी जूस बगल कैविटी के अंदर। फिर आगे आते हैं, जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, इसका वेट 1.2 से 1.5 केजी होता है एडल्ट ह्यूमन में। ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे। इसके दो लोब्स होते हैं। जो हेपेटिक लोब्यूल होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का। ये इनके हेपेटिक लोब्यूल के पास हेपेटिक सेल्स होते हैं जो कि कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, और जो लोब्यूल होता है वो कवर होता है बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट, इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। जो बाइल सेक्रीट होता है हेपेटिक सेल के द्वारा वो पास होता है थ्रू हेपेटिक डक्ट्स और स्टोर्ड और कंसंट्रेटेड होता है एक थिन मस्कुलर सैक में, जिसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। जो डक्ट होता है गॉल ब्लैडर का उसको हम लोग कहते हैं सिस्टिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट के साथ लीवर से फॉर्म करता है कॉमन बाइल डक्ट, मतलब गॉल डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट प्लस हेपेटिक डक्ट फॉर्म करता है कॉमन बाइल डक्ट। जो बाइल डक्ट होता है और पैंक्रियाटिक डक्ट होता है वो टुगेदर वो मतलब कि साथ में खुलता है ड्यूडेनम के अंदर, और कॉमनली इसको हम लोग कहते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट।
जो कि गार्ड होता है बाय स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। जो पैंक्रियाज होता है वो कंपाउंड होता है। ये दोनों एक्साइन और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। ये सिचुएटेड होता है बिटवीन द लिम्ब्स ऑफ द यू शेप्ड डिओडेनम। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस सेक्रीट करता है। और इन इस एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं। और जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो सेक्रीट करता है हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इन वाला है गॉल ब्लैडर। ये जो जोड़ रहा है ये हमारा डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। ये है डक्ट ऑफ डक्ट फ्रॉम लीवर। और यहाँ से ये जोड़ रहा है फ्रॉम डक्ट ऑफ फ्रॉम गॉल ब्लैडर। ये कॉमन बाइल डक्ट। ये डिओडेनम। ये पैंक्रियाज। और ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये है हमारा हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब आता है लीवर। लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। हिपैटिक लोब्यूल्स। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का। और इनके पास होते हैं हिपैटिक सेल जो कि अरेंज्ड होते हैं कॉर्ड के फॉर्म में। ईच लोब्यूल कवर होता है बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। जिसको हम लोगों ने कहा है ग्लिसन्स कैप्सूल। हिपैटिक सेल्स जो बाइल सेक्रेट करते हैं। वो पास होता है थ्रू हिपैटिक डक्ट। और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। फिर कह रहे हैं डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर जिसको हम लोगों ने कहा है सिस्टिक डक्ट। प्लस हिपैटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट
प्लस हिपैटिक डक्ट फॉर्म करता है हमारा कॉमन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट। टुगेदर साथ में खुलता है डिओडेनम में। ओपन होता है डिओडेनम में थ्रू हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये गार्ड होता है बाय स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। अब आते हैं पैंक्रियास पे। तो कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन होता है। ये बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होता है। ये सिचुएटेड होता है बिटवीन द लिम्स ऑफ डिओडेनम जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है यह सेक्रेट करता है एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस। और इनके पास एंजाइम्स होते हैं। और जो एंडोक्राइन होता है ये सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अब आते पहले डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पे। Inflammation of intestinal tract is the most common ailment due to bacterial or viral infection. Infection are caused by the parasite of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm, etc. जॉन्डिस में लीवर अफेक्टेड होता है, स्किन और आईज येलो पड़ जाती हैं ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ठीक है। और वोमिटिंग, it is the ejection of stomach content through the mouth. This reflex action is controlled by the vomit center in the medulla. A feeling of nausea precedes vomiting. Diarrhea, abnormal frequency of bowel movement, and increased liquidity of the fecal discharges. Diarrhea, it reduces absorption of food. In constipation, the fecus are retained with the rectum and the bowel movement occur irregularly. Indigestion, food is not properly digested, leading to the feeling of a fullness. The causes of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating, spicy food. अब इस पे आते हैं एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। पहले ये समरी जो चार्ट दिया इसको
बना लेते हैं एक बार। इसे बताएं कि किस बॉडी पार्ट में कौन सा कितना क्या ऑब्जर्व होता है। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन पे। इसमें बताएं कि किस किस बॉडी पार्ट में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होंगी। अब आते हैं सबसे पहले माउथ पे। तो माउथ में सबसे पहले क्या एब्जॉर्ब होगा? कुछ ड्रग्स, coming in contact with the mucosa, of mouth and lower side of tongue are absorbed into blood capillaries lining them। फिर स्टमक में आता है, क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? पानी, सिंपल शुगर, अल्कोहल, इतनी चीजें। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। और जो फाइनल प्रोडक्ट डाइजेशन के वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स। ये है फाइनल प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्ब थ्रू म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी, कुछ मिनरल्स और ड्रग्स। ठीक है, अब आते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। Absorption is the process by which the end product of digestion pass through the intestinal mucosa into blood or lymph.
It is carried out by passive, active, or facilitated transport mechanism. Small amount of monosaccharide like glucose, amino acid, and some electrolyte like chloride are generally absorbed by simple diffusion. Passage of these substances into the blood depend on the concentration gradients. Some substances like glucose, amino acid are absorbed with the help of carrier protein. Mechanism is called facilitated transport. Transport of water depend on the osmotic concentration gradient. Active transport occur against the concentration gradient and hence require energy. Various nutrients, amino acid, monosaccharide, glucose, electrolyte, Na plus are absorbed into blood by this mechanism. Fatty acid glycerol being insoluble cannot be absorbed into the blood. These are first incorporated into small droplets called micelles, which move into intestinal mucosa. They are reformed into very small protein coated fat globules, जिसको हम लोग कहते हैं chylomicrons, which are transported into the lymph vessel in the villi. These lymph vessels ultimately release absorbed substance into bloodstream. ठीक है, खास नहीं है. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे पहले तो डेफिनेशन हो गई. एब्जॉर्प्शन क्या है? द प्रोसेस जिससे एंड प्रोडक्ट जो डाइजेशन का है वो पास हो जाता है थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा into blood and lymph. एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू 3 पार्ट से या फिर 3 स्टेप. पैसिव, एक्टिव, फैसिलिटेड. जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स हो गए, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि क्लोराइड आयन, ये जनरली एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. और हो गए ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये एब्जॉर्ब हो गए थ्रू कैरियर प्रोटीन्स.
इसको हम लोग कहते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। और जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है थ्रू, डिपेंड करता है ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। फिर वेरियस न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज, और इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि Na+, ये होता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लिसरॉल होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं और इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो पाते हैं ब्लड से। तो ये पहले बनाते हैं कुछ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं मीसल्स। फिर ये जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। फिर ये रिफॉर्म होते हैं इनटू स्मॉल प्रोटीन्स और कोटेड होते हैं फैट ग्लोब्यूल से, जिसको कहते हैं काइलो माइक्रोन्स। बस इतना ही दिया है। और बचा ये वाला टॉपिक, ये आखिरी टॉपिक हम लोग करेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।